एजुकेशन करके दिखाएंगे। Namaste and welcome to the next session of PT's Vocabulary Booster. Your terrific response is keeping our team motivated and enthused to produce awesome quality content on a regular basis. And in that series, here is the next Vocab Booster. काम शुरू करें? Let's begin. PT's Vocabulary Booster, vocabulary for competitive exams along with practice questions करके दिखाएंगे. Learn words with techniques that make them stick forever. ये हमारी गारंटी है. आप इन सेशंस को बड़े ध्यान से देखें. और उसके अलावा the absolutely amazing course that we have now created for you will prove to be the clinching factor. Remember, the free excerpt of our sessions are always available on PT Education's YouTube channel. और पूरा सेशन आपको देखना है तो PT की बूस्टर साइट पर आ जाइए boosters.pteducation.com. Vocabulary development course from A to Z, made up of 50 sessions, more than 45 minutes each. The link for enrollment is given on the screen. आप इस लिंक को अवश्य चेक करें. This course can totally transform your approach to learning the most basic building blocks of the English language, which is words. We will not specifically study grammar and usage in this, but the sheer fact that we will learn vocabulary in a very, very interesting manner, literally thousands of words being covered, along with a lot of practice PDFs and tests, आपको बड़ा आनंद आएगा और ये पूरा एक transformational experience होगा. So you are welcome to enroll in this course. PT's Vocabulary Development Course from A to Z, link आपके सामने है. Let's start our work for the Booster series with some words of wisdom. To learn words, we first go to words of wisdom. If you want to achieve excellence, you can get there today. As of this second, quit doing less than excellent work. यदि आपको अपने काम में उत्कृष्टता लानी है, तो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं. कैसे? इसी सेकंड से आप उत्कृष्ट से थोड़े कम स्तर का काम करना बंद कर दीजिए. That is the simple mantra. So this is all about an attitude and a mindset, isn't it? What a beautiful message this was. Think about it. Vocab Booster is offering you vocab for competitive exams along with practice questions. For all government exams and MBA entrance exams, you will find this absolutely indispensable. Let's get cracking with vocab for competitive exams. We have reached the 5th booster session. 1, 2, 3, 4 देखते ही देखते 5वां सेशन आ गया भैया. कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ. बाप रे बाप, लॉ पढ़ेंगे आज हम. घबराओ मत, लॉ नहीं पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं पढ़ेंगे, आर्टिकल्स भी नहीं पढ़ाऊंगा, शेड्यूल्स भी नहीं पढ़ाऊंगा, पार्ट्स भी नहीं पढ़ाऊंगा. वी आर गोइंग टू टेक अप सम वर्ड्स विच आर लीगल इन देयर tone and character, but like always we have this bad habit of connecting the dots. तो हम तो हर तरफ छलांग मारेंगे, हमारी बड़ी पुरानी आदत है. Are you all set? Vocab Booster या Booster series की नोटबुक निकाल लो और लिखना शुरू करो. We start a work with Constitution and Law Part 1 VB5. Arbitration. What a beautiful, और थोड़ा heavy word है, impression मारने के बहुत काम आएगा. और accent बना के मारोगे तो और impression पड़ेगा बेटा. The Indian company wanted to avoid the courts and requested for arbitration to settle the dispute with the American firm. So it is very obvious that something outside the courts is going to take place now. So the Indian company wanted to avoid the legal process in the courts and requested for arbitration to settle the dispute with the American firm. Let's see the meaning of this specific word, arbitration. It's a process in which a dispute is settled using an arbitrator and not the judge of the legally established courts. तो दो लोगों के बीच में बड़ा झगड़ा हुआ, यूजुअली बहुत बड़ी कंपनीज के बीच में नॉर्मली, और बिटवीन अ नेशन एंड अ कंपनी, स्टफ लाइक दैट, अ स्टेट एंड अ कंपनी. और उस झगड़े को सुलझाने के लिए कोर्ट नहीं जाना चाहती कोई पार्टी, क्योंकि वहां पे पूरा फॉर्मल और एंटागोनिस्टिक और बहुत लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस होगा. So they would rather prefer an arbitrator. ऐसा कई केसेस में होता है. And India is actually becoming a hub of international arbitration. Synonyms for the word arbitration. बहुत अच्छे words हैं. Mediatorship यानी मध्यस्थता कराना. Conciliation. Conciliation also has a very, very positive tone.
कंसीलिएटरी टोन, यानी अब समझौता करने के प्रति इच्छुक बातचीत का टोन। कंसीलिएशन नाउन, कंसीलिएटरी एडजेक्टिव। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पता होने चाहिए। सेंटेंस कैसे बनाओगे बेटा? इंटरवेंशन, तो इसे नेगेटिव ना समझें। इन द कंटेक्स्ट ऑफ बीइंग सिनोनिमस टू आर्बिट्रेशन, इंटरवेंशन कैन बी वेरी पॉजिटिव। और खास तौर पे हमारे ह्यूमन रिसोर्स के जितने एक्सपर्ट्स हैं, एचआर एक्सपर्ट्स, एचआर इज द बेस्ट आचार। मैंने पहले भी पूछा था, आपने बताया नहीं, इसका क्या मतलब है एचआर इज द बेस्ट आचार? बताइएगा। पॉजिटिवली बोल रहा हूं, एचआर वाले नाराज होकर आंखें बड़ी बड़ी करके मत देखो मेरी तरफ। इंटरवेंशन के लिए एचआर वाले अक्सर बोलते हैं, आई एम गोइंग टू टेक द टीम आउट फॉर सम एचआर इंटरवेंशंस, एंड यूजुअली दे से इट विद अ वेरी एजुकेटेड एक्सेंट, तो एवरीबॉडी टेंड्स टू बिलीव देम। करना भी चाहिए, सैलरी उन्हीं के हाथ में। पीस मेकिंग, शांति समझौता करवाने की प्रक्रिया, मीडिएशन। सो दीज आर सम वेरी वेरी ब्यूटीफुल वर्ड्स। अब आइए इनके उल्टे शब्द देखें। विलोम, एंटोनिम्स। इंसाइटेशन, झगड़े के लिए उकसाना। आर्बिट्रेशन में तो आप समझौते के लिए साथ बिठाते हो, समझ गए? सो वी आर गोइंग इन दी अदर डायरेक्शन नाउ। एग्रवेशन, स्थिति को और भड़का देना। चैलेंज, चुनौती, जिसके लिए क्या कहते हैं? यू थ्रो डाउन द फिल इन द ब्लैंक, यू थ्रो डाउन द फिल इन द ब्लैंक। हमें बताइए कमेंट्स में। इंस्टिगेशन, और आग लगा लगा के भड़काना। एग्जॉर्टेशन, अपील करना कि उठ खड़े हो जाओ विद्रोह में। थ्रेट, धमकी देना। तो नेचुरली ऑल दीज वर्ड्स कैन नॉट बी सिनोनिमस टू आर्बिट्रेशन, इनफैक्ट दे आर द एग्जैक्ट अपोजिट। पार्ट ऑफ स्पीच, आर्बिट्रेशन इज अ नाउन, ये एक संज्ञा है, तो इससे जो वर्ब निकलता है वो है आर्बिट्रेट। ध्यान रखिएगा, ही विल आर्बिट्रेट द डिस्प्यूट। And another noun, arbitrator. He is the arbitrator who will arbitrate and conduct the process of arbitration. The decision which comes out of this process of arbitration, क्या कहते हैं उसको? Award. तो ये अंतिम निर्णय को award कहा जाता है। Usage tip. This is a technical word, so be cautious. ज्यादा इंप्रेशन झाड़ने के चक्कर में यूज मत करना, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। एंड डू नॉट कंफ्यूज विथ आर्बिट्राज। तो भैया क्यों बोला हमने ऐसा? तो आप में से जितने ज्ञानी, परम ज्ञानी, महाज्ञानी हैं, टेल अस द डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड आर्बिट्राज। अच्छा, दो बहुत अच्छी साइट्स आई हैं, google.com, wikipedie.com। आप में से कई लोग वहां से सीधे कॉपी पेस्ट कर करके चिपकाते हैं कमेंट्स में। मत करो यार ऐसा, इट्स अ ट्रेजेडी, डोंट डू दैट टू मी। क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? कटिंग, कॉपिंग, पेस्टिंग फ्रॉम google एंड विकिपीडिया इज अ बैड हैबिट, इट क्रिएट्स अ वेरी बैड इंप्रेशन। अपने शब्दों में टाइप करो, अपने हिसाब से लिखो। द मोस्ट पैथेटिक थिंग यू कैन डू टू योर पर्सनल ब्रांड इज कॉपी पेस्टिंग। मत करो बेटा, मत करो। वो जमाना गया, 2008-9 तक बहुत अच्छा लगता था वो सब। 2017 में बैठे हो यार। लीगल, द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट 2015, ये भारतीय संसद का बनाया हुआ कानून है, याद रखना। And this is considered a type of ADR. So what is ADR? हमें बताइए। चलो कोई बात नहीं, हम ही आपको बता देते हैं। अब तीन बड़े खूबसूरत वाक्य देखो। Alternative dispute resolution, ADR बता दिया ना। Can be negotiation, mediation, collaborative law, arbitration और conciliation। तो alternative dispute resolution यानी वैकल्पिक किसी भी विवाद का समाधान, इस प्रक्रिया को ADR कहते हैं। उसके 5 प्रकार बता दिए आपको। Second, arbitration is not only faster than litigation, but parties can also choose their judge. This actually is a big reason why a lot of people choose to go for arbitration. In 2017, latest उदाहरण दे रहा हूं बेटा, CJI Justice Khehar, CJI का full form बताओ, said that India is becoming a hub of international arbitration, but the government should not interfere with the process at all if it really wants India to become a hub of international arbitration. तो आपको 3 बिल्कुल रेलेवेंट एग्जाम्पल दे दिया। अब आपको क्या करना है? यू हैव टू राइट डाउन दीज एग्जाम्पल्स इन योर नोटबुक। सिर्फ आंखों से आनंद लेते लेते पढ़ना नहीं है, वाह वाह क्या बढ़िया पढ़ाई हो रही है, वाह वाह, तो वाह वाह ही करते रह जाओगे। अनलेस यू राइट डाउन, यू नेवर लर्न अ लैंग्वेज। भाषा सीखने के लिए, कोई भी भाषा हो, और भारत में तो अंग्रेजी को देवता का दर्जा प्राप्त है, भगवान का, तो इस भगवान की आराधना के लिए लिखना पड़ेगा 5-5 बार। Then and only then will you develop a certain familiarity with the language, which otherwise will totally elude you. यही रोना है ना सबका, अरे सर भूल जाता हूँ, सर पढ़ता तो बहुत हूँ वो भूल जाता हूँ, बड़ा चेहरे पर भाव लाके बताते हैं। अरे लिखता नहीं है बेटे तू, इसलिए भूल जाता है। 5 बार लिख, कभी नहीं भूलेगा।
कैन का बहुत बड़ा टैक्स का झगड़ा भारत के साथ चल रहा है, जिसमें भारत अभी उलझ गया है। इन अ सेट बैक टू इंडिया, लेटेस्ट न्यूज आपको बता रहा हूं, सो दैट आर्बिट्रेशन का जीके साइड भी कवर कर लें। जीके की बीमारी है हमको। एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन पैनल रिजेक्टेड इट्स डिमांड फॉर अ स्टे, यानी इट्स यानी इंडिया, ये प्रोनाउन इट्स यहाँ पे इंडिया के लिए यूज हुआ है, फॉर अ स्टे ऑन एन आर्बिट्रेशन इनिशिएटेड बाय ब्रिटिश ऑयल एक्सप्लोरर कैन एनर्जी पीएलसी। पीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है बताना कमेंट्स में। अगेंस्ट रुपीज 10,000 करोड़ रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स नोटिस। तो भारत सरकार ने यानी टैक्स विभाग ने, बाद में ट्राइब्यूनल ने भी, कौन से ट्राइब्यूनल ने, स्क्रीन पे देख लीजिए, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल, उस रिट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव, रिट्रोस्पेक्टिव, सो डू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन प्रोस्पेक्टिव एंड रिट्रोस्पेक्टिव। बहुत अच्छे शब्द है, उनमें रूट वर्ड क्या है ये बताना, स्पेक्ट, स्पेक्ट। तो भारत सरकार ने कैन पे बहुत बड़ी टैक्स डिमांड निकाली थी, जो बाद में ट्राइब्यूनल्स ने अपहोल्ड की, और वो मामला बहुत बुरी तरह से उलझता चला जा रहा है। सो वी हैव डिस्कस्ड 12 वर्ड्स माय फ्रेंड्स, आर्बिट्रेशन, मीडिएटरशिप, कंसिलिएशन, इंटरवेंशन, पीस मेकिंग, मीडिएशन। सांस ले लो, ये लॉयर्स पता नहीं इतना कैसे बोल लेते हैं। इंसाइटेशन, एग्रीवेशन, चैलेंज, इंस्टिगेशन, एग्जॉर्टेशन, थ्रेट। हिंदी में बड़ा खूबसूरत शब्द मध्यस्थता करना, विवाचन, ये अच्छा टेक्निकल है, पंच निर्णय। तो इस प्रकार से ये 12 शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। 5-5 बार लिखो, बोलो, चीखो, चिल्लाओ। एंड द एसिड टेस्ट फॉर लर्निंग वोकैबुलरी, मेक सेंटेंसेस। इनिशियली स्टार्ट विथ सिंपलर सेंटेंसेस, शुरू में छोटे छोटे सरल वाक्य बनाइए, धीरे धीरे उन्हें आप साइज में बढ़ा सकते हैं, बट कीप द जनरल प्रिंसिपल इन माइंड, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, स्टूपिड। As long as you can stick to this broad guideline, you will be a master of communication. Otherwise, you will be churning. We move on to the second beautiful word for today. Sir, churning legal word थोड़ी है, अरे है यार। While the broker got punished for churning, हो गया ना legal word. He kept wondering why everyone told him since childhood that churning keeps life going. Did you get a smile on your face? ये सेंटेंस सुन के नहीं आया तो आना चाहिए था, वोकैबुलरी में हाथ थोड़ा कमजोर है बेटा अपना। While the broker got punished for churning, तो churning seems to be some kind of a financial crime, अभी देखते हैं। He kept wondering why everyone told him since childhood that churning keeps life going. तो normally a rolling stone gathers no moss, हमें बोला जाता है, उसी तरह कहा जाता है, you should keep churning stuff in your mind, in your heart, in your life, तो you don't gather rust anywhere. तो वो ब्रोकर सोचा था मैं तो चर्निंग ही तो कर रहा था अकाउंट में, तो मुझे पकड़ के पुलिस क्यों जेल में डाल रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो हियर चर्निंग इन योर लाइफ कैन हैव अ पॉजिटिव कॉनोटेशन, बट चर्निंग बाय अ ब्रोकर का मतलब होता है अपने किसी क्लाइंट के अकाउंट में शेयर्स की अत्यधिक खरीद फरोख्त करना, सिर्फ इसलिए कि मुझे ब्रोकरेज ज्यादा मिल जाए, क्लाइंट की लुटिया डूब जाए तो डूब जाए। मीनिंग, इसके दो बहुत अलग मीनिंग है, इसलिए बीच में सेपरेटर है, ध्यान रखना। Stirring or beating up a fluid. Normally this is the common sense it is used, but this is the legal word also. तो किसी फ्लूइड को आप इस तरह से जोर जोर से पीटते हैं या घुमाते हैं, तो समुद्र मंथन भी तो हुआ ही था ना हिंदू धर्म के इतिहास में। इलीगल एक्सेस ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स इज द सेकंड मीनिंग ऑफ इट। तो शेयर्स में यदि कोई ब्रोकर किसी क्लाइंट के अकाउंट में बार बार बहुत सेलिंग और बाइंग करता है, तो उसका ब्रोकरेज कमीशन मिलता है, लेकिन क्लाइंट को हो सकता है कोई फायदा ना हो रहा हो। Let's take a look at some of the synonyms for churning. Whipping, agitating, swirling, beating, tossing, heaving. Very, very beautiful words, समानार्थी शब्द। Whipping, agitating, swirling, beating, tossing, heaving. All of them will have their own unique applications. ये ध्यान रखना जब हम synonyms बोलते हैं तो ये समानार्थी, लेकिन ये बिल्कुल सेम शब्द नहीं है, इनमें बहुत फाइन शेड्स ऑफ डिफरेंस है। व्हेन यू कीप रीडिंग यू विल गेट एक्वेंटेड विद दीज फाइनर शेड, देयर इज नो अदर वे ऑफ डूइंग इट रियली। हाँ, द ओनली अदर वे इज यू जॉइन अ वोकैब डेवलपमेंट कोर्स। एंटोनिम्स, इसके विलोम शब्द, कीपिंग काम, बिल्कुल शांत रहना, स्टेइंग स्टिल, एक जगह बिल्कुल खड़े रहना, बिल्कुल हिलना नहीं, फ्रीजिंग, वेस्टर्न मूवीज में पुलिस कहती है ना फ्रीज, स्टेइंग पुट, एक जगह बैठे रहना, नॉट मूविंग, हिलना नहीं। तो इस प्रकार से चर्निंग के आप एंटोनिम्स बना सकते हैं। हम सिंगल वर्ड आ नहीं रहे थे क्योंकि ये जेरेंड है, तो इसलिए पार्ट ऑफ स्पीच समझना बेटा बहुत जरूरी है। जेरेंड अर्थात क्रियावाचक संज्ञा। सो जेरेंड इज बेसिकली एनी वर्ब जिसके आगे आप आईएनजी लगाकर उसे नाउन बना देते हैं। वर्ब यानी कि क्रिया, उसमें लगा दिया आईएनजी तो वो बन गई एक वस्तु यानी कि नाउन। तो चर्न, टू व्हिप,
तो घर में मक्खन निकालने के लिए माता जी ऐसा करती हैं दूध में, चर्निंग, चर्न में आईएनजी लगाया, माय मदर इज चर्निंग द मिल्क, मदर प्लीज चर्न द मिल्क। सो दैट्स हाउ जेरेंड्स वर्क, क्रियावाचक संज्ञा, ध्यान रखिएगा। द वर्ब इज चर्न। यूजेज टिप, कैन बी यूज बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली, हैंडल विथ केयर, इसका दोनों प्लस माइनस होता है। आपको अभी हमने बताया ना, लीगल टर्म में तो ये एक सजा है, क्योंकि ये इसकी सजा मिलेगी क्योंकि ये अवैध काम है, और अदरवाइज इट कैन बी वेरी पॉजिटिव एंड इवन अदरवाइज इट कैन बी नेगेटिव। हिस्टोरिकल एंड माइथोलॉजिकल, चर्निंग ऑफ द ओशन और समुद्र मंथन। अब आपको एक बेहद मजेदार चीज दिखाते हैं भैया, ये है सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट बैंकॉक। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी का हवाई अड्डा सुवर्ण भूमि, कितनी खूबसूरत प्रतिमा वहां लगी है हिंदू धर्म के समुद्र मंथन की। आई ऑफन कीप वंडरिंग, हिंदुस्तान में ऐसी प्रतिमाएं अलग अलग जगह क्यों नहीं दिखती? अच्छा सवाल है, सोचने लायक है, बताइएगा हमें क्यों नहीं। शायद हम सेक्युलर हैं इसलिए। तो यह है समुद्र मंथन। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सभी जगह आपको इस प्रकार के प्रतीक बड़े सरप्राइजिंग जगहों पे मिलेंगे। द वेरी फेमस अमर चित्र कथा, वी स्पोक अबाउट चर्निंग ऑफ द ओशन इन अ सीरीज ऑफ कॉमिक्स, जरूर पढ़िएगा। एंड दिस इज द टिपिकल इंडियन होम वेयर यू वुड फाइंड। अब तो खैर आधुनिक यंत्र आ गए भैया, तो अब ये ब्यूटी तो खत्म हो गई पूरी एक नेचुरल तरीके से काम करने की। सो वी हैव सीन 12 वर्ड्स टुडे: churning, whipping, agitating, swirling, beating, tossing, heaving, keeping calm, staying still, freezing, staying put, not moving, और हिंदी में मथना। तो ये 12 वर्ड्स और अब हो गए टोटल 24। याद रखिएगा, समुद्र मंथन इज नॉट जस्ट अ स्टोरी इन माइथोलॉजी। If you apply that story to your life, you will be surprised to see how step by step it really shows the various stages of your life. तो जब समुद्र मंथन हो रहा था तो एक तरफ असुर थे और एक तरफ देवता थे। सबसे पहले क्या निकलना शुरू हुआ? क्या वो बड़ी प्लेजेंट चीज थी? अमृत तो सबसे अंत में आया, तो जो बड़ी अनप्लेजेंट चीज थी वो हमेशा पहले निकलेगी। करियर में इस तरह के सेशंस देखना बड़ा अनप्लेजेंट है, इसके बिना अमृत तो मिलेगा नहीं। सो दैट मीन्स अनलेस यू गो थ्रू अ लॉन्ग फेज ऑफ ऑब्स्टिकल्स एंड पेन एंड ट्राइबुलेशन एंड ट्रिपिडेशन, आपको अंतिम सफलता नहीं मिलेगी। वो समुद्र मंथन आपके करियर के निर्माण की पूरी प्रोसेस को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। ये बात आज से 30 साल बाद आपको समझ आ जाएगी। अरे सर इतना समय थोड़ी है, 30 मिनट में क्या हो सकता है वो बताओ यार, कहाँ टाइम है इतना। Now we come to the next word, immunity.